Hello students, welcome to our mathematics class. Today we are going to learn a new method of solving simple equations, that is transposing method. Before this we have learned two methods. First one was trial and error method and second one was balancing the equation on both sides. And the first method that was time consuming because we are randomly taking some values for the variables and we are testing and when the equation was satisfied we are getting the solutions. That's why that method was time consuming and we are doing more calculations. But the second method, balancing the equations on both sides, and that was less time consuming and systematically we are determining the solutions. But the transposing method is more systematical as compared to the first two method, that is trial and error and balancing the equation both sides. So transposing method is most useful methods and we will use this method especially in solving equations in this class, also in higher classes. So you have to watch this video mindfully and you have to take notes also. First, we will understand the basic rules that are associated with the transposing method. After that, we will solve equations. What is the basic rule associated with it? The terms that are added to left hand side or any side of the equations, then if that is transferred to another side, then that term is subtracted. So additions and subtraction, the opposite operations are related here. The term which has been added, if that is transfer, then that have to be subtracted. यहाँ पे समझिए कि कोई टर्म अगर किसी साइड पे ऐड होके है तो उसको अगर हम किसी दूसरे साइड पे ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सपोज राइट हैंड साइड की, उसको राइट हैंड साइड की तरफ अगर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये जो ऐड हुआ होगा जो टर्म, उसको हमें अलग साइड पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस, द अपोजिट ऑपरेशंस आर रिलेटेड हियर. लाइकवाइज व्हेन a term is subtracted on a side, then it will be added on the other side. कोई टर्म अगर सब्ट्रैक्ट हो गया है एक साइड पे, अगर उसी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो दूसरे साइड में उसको ऐड करना पड़ेगा. सो एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए एडिशन, दोनों ऑपोजिट ऑपरेशन को रिलेट की गई है. तो ये रूल इजीली याद हो जाएगा क्योंकि भाई ये ऑपोजिट ऑपरेशंस को हम रिलेट किए हैं. एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन होगा तो एडिशन. ये जब ट्रांसफर करेंगे तभी ऐसा होगा. एंड द नेक्स्ट रूल, if a term is multiplied with all other terms of that side and if we are transferring that, then on the other side it will be divided. कोई टर्म अगर लेफ्ट हैंड साइड या फिर किसी एक साइड पे आप सोचिए कि बाकी टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ है तो मल्टीप्लाई जो टर्म हुआ है उसको अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो टर्म दूसरे साइड में जो भी जितने भी टर्म्स होंगे सबके साथ सबको हम वहाँ पे सबके साथ हमें वहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक उसी तरह से एक डिवाइड हुआ टर्म को अगर ले रहे हैं या फिर कोई नंबर अगर वहाँ पे डिवाइड करने के लिए है तो उसको अगर हम दूसरे साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको दूसरे साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इस तरह से ऑपोजिट ऑपरेशंस को यहाँ पे रिलेट किए हैं एंड बहुत इजीली ये याद हो जाएगा क्योंकि प्लस एंड माइनस एक दूसरे का ऑपोजिट ऑपरेशंस हैं. उसी हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को आप रिलेट कर सकते हैं. अगर कोई ऐड हुआ है तो उसको दूसरे साइड में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट हुआ है तो दूसरे साइड में उसको ऐड करना पड़ता है, मल्टीप्लाई हुआ है तो दूसरे साइड में डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड हुआ है तो दूसरे साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इतना ही है इसका बेसिक रूल्स. After that, let's try to solve equations by applying the rules that we have learned now. And our first equations that we are going to solve is 2x plus 4 equal to 10. 2x plus 4 equal to 10. Now in this equation you can see that we have variable x and 2 has been multiplied with the variable x and 4 has been added. पहले यहाँ पे समझिए कि भाई यहाँ पे x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि 2x है तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है एंड प्लस 4 दैट मीन्स 4 जो है ये टर्म 2x के साथ बिल्कुल ऐड हुआ है, 2x का बिल्कुल ऐड हुआ है. तो यहाँ पे हमें ट्रांसफर पहले किसको करेंगे, वी हैव द इक्वेशंस 2x प्लस 4 इक्वल टू 10. हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए किसकी, हम आंसर निकालना चाहते हैं x की. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x and as we need to find the value of x, so first we have to keep the term 2x and we need to separate or we need to transfer this plus 4 to other side. प्लस 4 को हमें किसी तरीके से हटाना है ताकि हमें 2x मिल जाए एंड 2x मिलने के बाद हमें x मिल सकता है. सो पहले जो हटाएंगे वो वाला है बिल्कुल जो कंस्टेंट टर्म प्लस 4. ओके, एंड प्लस 4 इसका मतलब ये देखिए 2x प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10.
सो हेयर 4 हैज़ बीन एडेड, एंड कोई भी टर्म अगर ऐड हुआ है, अगर उसको हम हटा रहे हैं दूसरी तरफ से या फिर दूसरी तरफ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो टर्म ऐड हुआ होता है उसको हमें दूसरी तरफ में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. सो बाय फॉलोइंग द रूल्स we have 2x plus 4 equal to 10, and now we need to transfer this plus 4 to other side. That's why on the left hand side we will have 2x, and on the right hand side we had 10, and as we are transferring plus 4 to the right hand side we will get there minus 4. Try to understand this step. देखिए पहले हमें 2x प्लस 4 था, यहाँ पे हमें प्लस 4 को प्लस 4 को ट्रांसफ़र करना है दूसरे साइड, एंड जबकि प्लस 4 को ट्रांसफ़र कर रहे हैं मतलब 4 उस टर्म के साथ पहले ऐड हुआ था, तो प्लस 4 को जब ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे हो रहा है -4, और जो टर्म 4 पहले ऐड हुआ था यहाँ पे दूसरे साइड में लेने के बाद वो वाला माइनस होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा. तो एडिशन के ऑपोजिट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शंस, उसी को आपको याद रख के करना है कि भाई जो ऐड हुआ है उसको दूसरी तरफ लेंगे तो सब्ट्रैक्ट होता है, अगर सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तो हम दूसरी तरफ लेंगे तो ऐड हो जाएगा. सो यहाँ पे +4 ट्रांसफ़र किए हैं -4, एंड नेक्स्ट स्टेप पे इसका वैल्यू निकालेंगे कि 2x इक्वल टू 10 -4 था, तो नेक्स्ट स्टेप पे उसका वैल्यू आ जाएगा 10 -4 का वैल्यू कितना 6 है. सो नाउ वी हैव 2x इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 6, अभी इतना इस स्टेप तक हम आ चुके हैं. एंड नेक्स्ट अभी टारगेट है 2x इक्वल टू 6 से हमें ये टारगेट करना है कि भाई x का वैल्यू हमें चाहिए, x का वैल्यू चाहिए. सो 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब है 2 इंटू एक्स, और आप बोल सकते हैं 2 टाइम्स x. यहाँ पे x एंड 2 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं, x एंड 2 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं. सो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहेंगे तो हमें सेपरेट करना है 2 को, और 2 को ट्रांसफ़र करना है दूसरी तरफ. ओके 2 को ट्रांसफ़र करना है दूसरी तरफ. सो कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाइड हुआ है बाकी टर्म से, तो हम जब सेपरेट करेंगे सो जो मल्टीप्लाई हुआ होगा दूसरी तरफ में जाके वो डिवाइड हो जाता है. दैट्स वाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x रहेगा, राइट हैंड साइड पे 6 पहले से है. सो ये जो 2 है उसको हम जब ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे साइड वो वाला डिवाइड हो जाएगा. एंड जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरह के सिंबल दे के लिखिए, एंड नॉर्मली आप डिवाइड 2 ऐसा मत करना है. अब ये वाला सिंबल जो डिवीजन पे आप यूज करते हैं उसी सिंबल को दे के लिखिए. सो x इक्वल टू 6/2, यहाँ पे 2 डिवाइड हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ था, और जो मल्टीप्लाई हुआ होता है उसको साइड ट्रांसफ़र करने से वो डिवाइड हो जाता है. सो now we have x equal to 6/2, and you can easily divide that, so you will get the answer x equal to 3. सो यहाँ पे देखिए आप कितनी कम स्टेप पे ये इक्वेशन सॉल्व कर पाए हैं. 1 2 3 4 स्टेप पे इजीली ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. एंड यहाँ पे इसके पहले वाले मेथड से जैसे कि यहाँ पे +4 था तो -4 कर रहे थे, तो दूसरी तरफ भी -4 करेंगे. ये करीब करीब उसी मेथड से सेम है, बस इस स्टेप को हटा दी गई है, इस स्टेप को हटा दी गई है ताकि कैलकुलेशन आपको कम लगे, लिखना भी कम पड़ रहा है. सो दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल. एंड जो पहले इक्वेशन हम सॉल्व किए हैं यहाँ पे और एक बार थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि 2x + 4 इक्वल टू 10 था. पहले हमें +4 को हटाना है ताकि हमें 2x मिल जाए, एंड 2x के बाद x मिल सकता है, इसलिए पहले +4 को हटाए हैं जहाँ पे कि -4 हुआ है राइट हैंड साइड पे. एंड उसका कैलकुलेशन खत्म होने के बाद 2 को हटाए हैं जो कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड था, राइट हैंड साइड पे वो डिवाइड हुआ है, उसके बाद हमें सॉल्यूशन मिल चुका है. लेट्स सी अनदर इक्वेशन. Let's try to solve another equations, that is 5x minus 3 equal to 7, and now we have the equation of the same format. पहले की इक्वेशन की तरह एक सेम फॉर्मेट है, 5x minus 3 equal to 7, जो कि ये इक्वेशन बिल्कुल पहले की तरह लग रहा है. बट डिफरेंस इज दैट यहाँ पे -3 है. ओके सो ये जो -3 है पहले हम इसको हटाएंगे तभी जाके हमें 5x की वैल्यू मिलेगी, एंड 5x की वैल्यूज मिलने के बाद हमें x की भी वैल्यू मिल सकती है. So let's try to remove the constant term, or try to transfer the constant term first, that is -3, and when -3 will be transferred to the right side it will be +3. और यहाँ पे 3 जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हुआ था उसको राइट हैंड साइड जब ले रहे हैं वो +3 हो जा रहा है, एंड इसी हिसाब से उसका वैल्यू आ जाएगा 7 + 3 दैट इज 10. सो 5x इक्वल टू 10, इतना तक हम आ चुके हैं. 5x इक्वल टू 10. एंड अभी सोचिए कि भाई 5x इक्वल टू 10, इससे x की वैल्यू कैसे निकलेगा. 5x का मीनिंग होता है 5 टाइम x, मतलब 5 एंड x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं. सो व्हेन वी विल ट्रांसफर 5 to the right side it will be divided.
सो यहाँ पे x की वैल्यू जब हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पहले से 10 था, तो लेफ्ट हैंड साइड से 5 इस तरफ आएगा, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई हुआ था, तो राइट हैंड साइड उसको ट्रांसफर करने से वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। सो x की वैल्यू यहाँ पे मिल सकती है इजीली, 5 2 = 10, दैट्स वाई x इक्वल टू 2। इसी हिसाब से यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है। सो देखिए ये मेथड कितनी ही आसान है। जस्ट आपको याद रखना है कि जो टर्म ऐड हुआ होता है उसको ट्रांसफ़र करने से वहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्शंस वाले टर्म को ट्रांसफ़र करने से ऐड होता है। एंड ठीक उसी तरह से कोई टर्म मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको ट्रांसफ़र करने से डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड हुआ होगा तो उसको ट्रांसफ़र करने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एंड जब हम टर्म ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वेरिएबल वाले टर्म्स को पहले रखना है, कंस्टेंट वाले टर्म को पहले ट्रांसफ़र कर देना, एंड वेरिएबल वाले टर्म से वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करना है। सो यही सिंपल स्टेप है, इसी से इजीली सॉल्व हो जाते हैं इक्वेशंस। लेट ट्राई टू सॉल्व अनदर इक्वेशन। एंड नाउ वी हैव 2/3 of x - 3 = 1। एंड ये दिखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए 2/3 of x ये वाला आपका वेरिएबल वाला टर्म्स है, एंड ये वाला आपका कंस्टेंट टर्म है। सो 3 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, एंड बाद में हम 2/3 of x से 2/3 को हम सेपरेट कर सकते हैं। सो लेट ट्राई टू सेपरेट -3 और लेट ट्राई टू ट्रांसफर -3 टू द राइट साइड। सो -3 को राइट साइड लेने से कितना होगा उसका वैल्यू, -3 राइट साइड जाने से वो वाला हो जाएगा +3। सो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 1 + 3 जिसका कि वैल्यू आएगा 4। सो ये स्टेप तक हम आ चुके हैं। 2/3 of x दैट इज इक्वल टू 4। नाउ वी हैव 2/3 of x दैट इज इक्वल टू 4, एंड 2/3 of x का मतलब है ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाइड विथ x। सो जब इस तरह का कोई फ्रैक्शंस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है एंड उसको आप सेपरेट करना चाहेंगे तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे समझिए कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड हुआ है एंड 3 यहाँ पे डिवाइड हुआ है, तो इसका बेस्ट वे है कि भाई इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, उसका रेसिप्रोकल 2/3 है, देखिए उसको हम यहाँ पे चेंज किए हैं, उल्टा कर दिए हैं। सो यहाँ पे 3 ऊपर आ चुका है, 2 नीचे आ चुका है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो चुके हैं, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पे जो 2 ऊपर था बिल्कुल वो नीचे डिवाइड होने के लिए है, जो कि उससे मल्टीप्लाइड हुआ था, एंड 3 जो कि डिवाइड होने के लिए था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है। तो इसका एक बेस्ट वे है कि जब फ्रैक्शंस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ है एंड उसी को आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप इजीली उस स्टेप को कर लेंगे। सो नाउ वी हैव x इक्वल टू राइट साइड पे 4 था एंड लेफ्ट साइड से 2/3 आ रहा है, तो ये वाला बिल्कुल चेंज हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, एंड आवर आंसर विल बी 2 2 = 4, 2 3 = 6। ओके, इजीली यू विल गेट द आंसर, दैट इज x इक्वल टू 6। सो इस स्टेप से आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि व्हेन फ्रैक्शंस इज मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल्स एंड यू नीड टू ट्रांसफर दिस फ्रैक्शन टू अदर साइड, देन द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शंस विल बी मल्टीप्लाइड। एंड नेक्स्ट इक्वेशंस, 4x + 2 = 3x + 5। What is the basic difference between the equation that we have solved and this equation? इस इक्वेशन से जो पहले इक्वेशन सॉल्व किए हैं उससे एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है कि भाई यहाँ पे जो वेरिएबल वाला टर्म्स है यहाँ पे दोनों तरफ है, एंड कांस्टेंट यहाँ पे दोनों तरफ है। कांस्टेंट तो पहले से दोनों तरफ रह रहे थे, लेकिन वेरिएबल वाला टर्म्स एक साइड रहा था, तो एक साइड रहने से आसान था कि आप सिर्फ कांस्टेंट को हटा देते थे एंड इजीली आपको उसके बाद वेरिएबल का जो भी कोएफिशिएंट होता है उसको हटा देते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए वेरिएबल वाला टर्म्स भी दोनों तरफ है एंड कांस्टेंट भी दोनों तरफ है। सो इसी केस पे करना क्या है, इसी केस पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। सो x वाला टर्म जो भी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल वाला टर्म्स जो भी है उसको एक साइड रखेंगे, कांस्टेंट वाला टर्म को एक साइड रखेंगे। सो यहाँ पे 3x जो राइट साइड है उसको ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, एंड जो +2 है उसको ले जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। सो इक्वेशंस देखिए जिस फॉर्मेट पे है, वी हैव 4x + 2 = 3x + 5। सो अभी 4x को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, उसी सेम साइड में लाते हैं 3x को, एंड 3x जो है ना ये यहाँ पे ऐड हुआ है एंड उसका साइन पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड आने से ये हो जाएगा -3x, एंड राइट हैंड साइड पे पहले से 5 है एंड ये जो +2 है उसको उस तरफ लेने से हो जाएगा -2। सो 4x - 3x दैट इज इक्वल टू 5 - 2,
एंड 4x माइनस 3x इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू x हो जाएगा, 5 माइनस 2 का वैल्यू ये हो जाएगा आपका 3। सो यहाँ पे बहुत ही आसानी से मिल जा रहा है आंसर कि भाई x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3। तो सो वेरिएबल्स वाले टर्म्स जब दोनों तरफ होंगे, उन दोनों तरफ होंगे तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उसको भी, एंड कंस्टेंट को एक तरफ करना है। सो वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ होंगे एंड कांस्टेंट वाले टर्म एक तरफ होंगे, तो आसानी से आप वहाँ पे आंसर डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज द बेसिक मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट विल यूज इन हायर क्लास आल्सो, एंड दिस इज मोस्ट सिंपल मेथड। आपको यह हो सके आप यहाँ पे अभी इस तरह का मेथड यूज करके और भी जो इक्वेशंस आपको दी जाएंगी एडिशनल वर्क के हिसाब से आप अभी कर सकते हैं। And now the last, find a number such that 1/4 of the number is 3 more than 7. This is our questions, and now first we have to frame equations when we will get this kind of questions, and after that we will try to solve the equations. जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे कि फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ, यहाँ पे आपको एक नंबर ढूंढने के लिए बोला जा रहा है जिसका कि 1/4 7 से 3 ज़्यादा है। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जब आप एक अननोन चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पे पहले आपको अननोन वेरिएबल लेके इक्वेशन फ्रेम करना है। अननोन वेरिएबल्स के हिसाब से आप x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, एनी वेरिएबल्स यू मे टेक, एंड वहाँ पे पहले आपको वेरिएबल्स लेके एक इक्वेशन फ्रेम करना होगा जो कि इसी स्टेटमेंट के हिसाब से अप्रोप्रिएट होगा। ओके, एंड इक्वेशन फ्रेम करने के बाद, सही इक्वेशन फ्रेम करने के बाद उसको आप सॉल्व करेंगे, एंड सॉल्व करने की प्रोसेस तो आपको अभी आती ही है क्योंकि आप अभी 3 मेथड बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद बैलेंसिंग वाला एक मेथड कंप्लीट किए हैं, उसके बाद ट्रांसपोजिंग। सो चॉइस आपकी है कि आप कौन से मेथड से करेंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि सेकंड एंड थर्ड से करने की। बैलेंसिंग वाला प्रोसेस अप्लाई कीजिए या फिर ट्रांसपोजिंग वाला, यही दोनों मेथड हैं आपको अच्छी तरीके से सीखना है। एंड जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो तो वैसे भी टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस मेथड पे अगर पूछा गया है सवाल ट्रायल एंड एरर मेथड से, तभी ट्रायल एंड एरर मेथड से करना है, लेकिन अगर पूछा नहीं गया है तो आप अपने ही मर्जी से जो भी मेथड से कर सकते हैं। सो यहाँ पे कोई भी मेथड की नेम यहाँ पे नहीं है। सो आपके पास कंप्लीटली फ्रीडम है कि आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। एंड पहली बात, यहाँ पे इक्वेशन नहीं है तो इक्वेशन फ्रेम करना है, तो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए वेरिएबल चाहिए। लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन डीपली, आफ्टर दैट यू विल टेक वेरिएबल्स एंड यू विल फ्रेम इक्वेशंस। फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। यहाँ पे हमें ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो नंबर की, अगर सपोज ये वाला एक वो नंबर है, सपोज कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि ये वाला वो नंबर है, उसका अगर हम 1/4 लेते हैं, सो 1/4 लेते हैं तो ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है। मतलब 7 से 3 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ये वाला टोटल का टोटल आपका 10 ही होगा। टोटल का टोटल ये वाला कितना होगा, 10 होगा। सो इन दोनों को अगर हम यहाँ से अगर हम 7 सबट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास होना चाहिए कितना, 3, क्योंकि भाई ये 3 मोर है। दिस 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर, ये 3 ज़्यादा है। किससे 3 ज़्यादा है, 7 से 3 ज़्यादा है। सो इसी नंबर से अगर हम 7 सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 3। सो जब इक्वेशन फ्रेम करेंगे सो उसी हिसाब से हमें इक्वेशन को फ्रेम करना है कि 1/4 ऑफ द नंबर, कोई नंबर अगर हम ले रहे हैं तो अगर यहाँ पे हमें आंसर पता नहीं है इसलिए हम पहले अननोन वेरिएबल्स लेंगे। सो अगर अननोन वेरिएबल्स को अगर हम x लेते हैं, सो 1/4 ऑफ द नंबर दैट विल बी 1/4 ऑफ x, जिसको कि आप लिख सकते हैं x/4। दिस विल बी 1/4 ऑफ द नंबर। ओके, सो नाउ वी हैव 1/4 ऑफ द नंबर h x/4, and this x/4 is 3 more than 7. So when 7 will be subtracted from that, we will get as answer 3, क्योंकि ये 3 ज़्यादा है। किससे 3 ज़्यादा है, 7 से 3 ज़्यादा है। सो इसी नंबर से अगर हम 7 सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें 3 मिलेगा। सो इसी हिसाब से पहले हमें इक्वेशन को फ्रेम करना है। सो देखिए यहाँ पे इक्वेशन फ्रेम हो चुकी है ऑलरेडी, x/4 - 7 दैट इज इक्वल टू 3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालना है, किसकी, x की वैल्यू निकालना है, ताकि यहाँ पे x की वैल्यू जब डिटरमाइन हो जाएगी सोल्यूशन हमें मिल गया और जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो नंबर हमें मिल गया। सो
सिस्टमेटिकली लिखने की कोशिश कीजिए। लेट द अननोन नंबर्स बी एक्स, ये अननोन नंबर जो है हम उसको एक अननोन वेरिएबल के हिसाब से लिए हैं एक्स, एंड 1/4 ऑफ द नंबर जो कि 1/4 ऑफ एक्स होगा, जिसको कि आप सिंपली x/4 भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज 3 मोर देन 7, दैट्स वाई जब आप इसकी इक्वेशन फ्रेम करेंगे कि भाई x/4 से जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 ही उसका आएगा आंसर। सो x/4 - 7 दैट्स इक्वल टू 3। एंड ट्रांसपोजिंग मेथड अभी सीखे हैं तो उसको ही यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो आप बैलेंस वाला इक्वेशन भी, बैलेंस वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते थे। तो चलिए -7 जो है उसको पहले हटाना है राइट साइड पे, तो -7 हो जाएगा +7। सो इसी हिसाब से जब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे और एक बार स्टार्टिंग से x/4 - 7 इक्वल टू 3, सो पहले आप हटा रहे हैं -7 को, सो -7 राइट साइड से जब जाएगा तो वहाँ पे +7 हो जाएगा एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + 7 दैट इज 10। सो x/4 दैट विल बी इक्वल टू 10। स्टेप तक आ चुके हैं हम। एंड नाउ देखिए यहाँ पे 4 वहाँ पे x के नीचे है, तो ये इसको हम समझेंगे कि भाई 4 x के साथ डिवाइड हुआ है। सो जहाँ पे यहाँ पे 4 डिवाइड हुआ है उसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो वो वाला नेक्स्ट जो साइड होगा राइट हैंड साइड में वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इक्वल टू 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे 4। सो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40। सो 40 ये जो x का वैल्यू हमें मिल चुका है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड नंबर। यही वो नंबर है जिसकी कि 1/4 लेते हैं तो वो 7 से 3 ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली देखिए 40 की अगर आप 1/4 लेते हैं तो आपको मिलेगा 10, एंड ये जो 10 है 7 से 3 ज़्यादा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा। सो इसी हिसाब से आपको सोल्यूशन डिटरमाइन करना है। सो वर्ड प्रॉब्लम्स जब भी किसी अननोन नंबर्स या फिर अननोन चीज़ के बारे में आपको पूछा गया है तो पहले उस अननोन नंबर को एक वेरिएबल से रिलेट कीजिए, एंड वेरिएबल से रिलेट करने के बाद यहाँ पे आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, एंड नाउ दैट इज योर टर्न, यू हैव टू कंप्लीट द एक्सरसाइज, एंड इफ देयर विल बी एनी डाउट्स वी विल डिस्कस इट।